अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أن لكل داء دواء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1441 ختم ہوا. آج سے سن ہجری 1442 شروع ہو گیا. یعنی کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقائے مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر شریف کے 53ویں سال میں اپنے آبائی شہر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. آپ پھر مدینہ منورہ میں 10 سال باقاعد حیات رہے تا اپنی عمر شریف کے 53ویں برس میں آبائی شہر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی تھی، آج اس کو 1441 سال ختم ہو گئے اور 1442ویں سال کا پہلا دن محرم الحرام کا مہینہ اور آج جمعہ کا دن ہے. سن ہجری 1442 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، آج اس کی پہلی تاریخ اور جمعہ کا دن ہے. اس حساب سے عاشوراء محرم آئندہ جمعہ کے بعد آنے والی اتوار کو 10 محرم پڑے گی. میں نے اس وقت قرآن مقدس کے آیات اور احادیث پڑھی ہے. 15 منٹ 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. چونکہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو گیا، مہینہ بھی محتم بشان، اور آج کے دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین الثانی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن بھی ہے. تو کئی مضامین جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مختصراً 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں خطبہ ارشاد فرمایا: زمانہ گم گم کر اپنی اصلیت پر آ گیا. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں،
पहला महीना मुहर्रम अल हराम है, आखिरी महीना जुल्हिज्जत अल हराम है। फरमाया इसमें 4 महीने हुर्मत और अजमत वाले हैं। खुसूसियत के साथ इन 4 महीनों में कोई गुनाह, कोई खिलाफ शरा, कोई मासियत और अल्लाह की नाफरमानी का काम न करो। साल भर में न करो, लेकिन खास तौर पर इन 4 महीनों में तो न करो। सलासुन मुतवालियतुन, 3 महीने तो पेदरते हैं, जुल्क़अदा, जुल्हिज्जा जो खत्म हो गया, और मुहर्रमुल हराम जो आज से शुरू हो गया। जुल्क़अदा, जुल्हिज्जा, जुल्हज्जा, मुहर्रमुल हराम, सलासुन मुतवालिया, 3 महीने पेदरते हैं। और 1 महीना जुमादुल उखरा और शाबान के दरमियान यानी रजब। तो साल में 4 महीने खुसूसियत के हामिल हैं। एक जुल्क़अदा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों में इस्लाम से पहले जाहिलियत में भी लोग कत्लो क़िताल नहीं करते थे, गुनाह के काम नहीं करते थे। अरबों में लड़ाई बहुत मशहूर थी। मामूली बातों पर 100 साल तक लड़ाई बंद नहीं होती थी। एक मसले पर लड़ाई शुरू हो गई, 100 साल गुजर गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती थी। खानदानों के खानदान कट जाते, मर जाते, लेकिन वसीयत कर जाते थे कि लड़ाई बंद मत करना। ये रिवाज था। लेकिन इन महीनों के आने पर वो लड़ाई का सिलसिला खत्म कर देते थे। देखिए, बूत के पुजारी, पड़ा हुआ खून जमीन पर से चाट लेने वाले, पेट की सगी बेटी को जमीन में जिंदा दफनाने वाले, लेकिन इन महीनों का एहतराम करते थे। बदकिस्मती से मुसलमानों में इन महीनों की हुर्मत खत्म हो चुकी। ज्यादा से ज्यादा आशूराए मुहर्रम की कदर कर लेते हैं, तो घमाना घूमघाम कर असलीब पर आ गए। साल के 12 महीने हैं, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन महीनों में खुसूसियत के साथ कोई गुनाह और नाफरमानी का काम न करो, और नेकी और ताअत के कामों में सबकत ले जाओ। इस्लाम से पहले इब्तिदाए आफरीनी से आलम से मुहर्रम का महीना अल्लाह के यहाँ हुर्मत वाला है। जिस वक्त से अल्लाह ताला ने आदम पैदा किया, उस वक्त से मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला था। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मुहर्रम के महीने में हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहर्रम के महीने में कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर मुहर्रम के दिन नजात मिली। कौम नूह को तूफान से मुहर्रम में नजात मिली। हजरत अय्यूब को बीमारी से शिफा मुहर्रम के महीने में नसीब हुई। हजरत दाऊद की बीमारी से इलाज और तौबा की कबूलियत मुहर्रम के महीने में हुई। हजरत सुलेमान को सल्तनत मुहर्रम के महीने में नसीब हुई। हजरत इब्राहिम नमरूद की आग गुलजार हुई थी, वह मुहर्रम के दिन, यानी आशूराए मुहर्रम के दिन। इसी तरह अल्लाह ताला ने फिरौन को गरकाब किया और बनु इस्राइल को फिरौन के जुल्म सितम से अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाई, वह मुहर्रम का दिन था। हजरत इदरीस को बुलंद मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, वह मुहर्रम का महीना था। अल्लाह ताला 10 नबियों को 10 चीजों से अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाई और सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला हमें 11वीं चीज अता फरमाए, खुसूसन पूरा वर्ल्ड और मुल्क हिंदुस्तान वबाई मर्ज से अल्लाह ताला आजाद फरमा दे और नजात अता फरमा दे। 11वीं चीज हम अल्लाह से मांगते हैं। जब अल्लाह ने इन 10 नबियों को इन 10 सिफात से माला माल फरमाया, उस अल्लाह की जात से कोई बईद नहीं, उसे मांगना चाहिए अल्लाह ताला खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान से जुल्म को खत्म फरमा दे और पूरे वर्ल्ड से वबाई मर्ज को अल्लाह ताला खत्म फरमा कर आजादी नसीब फरमा दे। यह महीना इब्तिदाए आफरीनी से आलम से मुहर्रम है, मोहतरम है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमजान के बाद साल भर में रोजे की बेहतरीन सीजन मुहर्रम का महीना। रमजान के बाद साल भर के बाकी 11 महीनों में रोजे की बेहतरीन सीजन मुहर्रम का महीना। अभी दिन छोटे होने लगे, रातें लंबी होने लगी, अब बारिश के बाद सर्दी का जमाना आने वाला है। अश्शिताउ गनीमतुल मोमिन ताला लैलुहु फकामा व कसुरा नहारुहु फसामा। सर्दियों का सीजन मुसलमान के लिए गनीमत होता है। दिन छोटे छोटे मुसलमान रोजा रख लेता है, रात लंबी लंबी, आदमी अल्लाह के दरबार में उठ खड़ा होकर के नमाज में मशगूल हो जाता है। तो मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज होता है। इस महीने की 10 तारीख बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है और इत्तिफाक से नवासाए रसूल जिगर गौसाए बतूल सैयदना हुसैन इब्ने अली की 72 जानिसार वफाशियार साथियों के साथ शहादत करबला के मैदान में मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हुई, जिसका तफसीली हाल इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में जिक्र किया जाएगा। लेकिन चूंकि शनिचर इतवार का रोजा होगा, सियाम आशूरा अहतसिब अला अल्लाह अन युकफ्फिर सन्नत अल्लती क़बला व सन्नत अल्लती बअद। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोजा रखा करो। इस्लाम से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, फिर जब रमजान का रोजा फर्ज होने तक आशूराए मुहर्रम का रोजा फर्ज, जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो आशूराए मुहर्रम के रोजे की फर्जियत खत्म हो गई। अब उसका इस्तेहबाब बाकी रहा, जो चाहे रखे जो चाहे न रखे। 9 और 10 का रोजा रखा जाता है और 9 तारीख आइंदा जुमा के बाद शनिचर को पड़ेगी और 10 तारीख इतवार को पड़ेगी। तो 9-10 का रोजा रखा जाए या 10-11 का भी रोजा रख सकते हैं, चाहे 9-10 का रोजा रख ले, चाहे 10-11 का रोजा रख ले। ये 2 बातें। एक बात, नए साल का आगाज, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम और आज पहली तारीख और जुमा का दिन, इसके मुताबिक ये चंद बातें आपकी खिदमत में पेश हुई। आज के दिन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन असानी सैयदना फारूक आजम की शहादत 10 बरस 6 महीने 10 दिन चंद घंटे खिलाफत की अजीम जिम्मेदारी अपने जिम्मे में लेकर और बागबाने नबूवत और इस्लाम को सैराब फरमाकर और इस्लामी फुतहात को दूर दूर पहुंचाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कदमों में, पहलू में, आस्ताना नबूवत में जामे शहादत नौश फरमाकर अबदी सुकून हासिल फरमा लिए। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। 27 ज़ुल्हिज्जा मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी मेहराब नबवी में नमाज फजर में सैयदना फारूक आजम पर कातिलाना हमला हुआ और सैयदना फारूक आजम को जहर आलूद नेजा से सैयदना फारूक आजम की शहादत हुई। 27 ज़ुल्हिज्जा, फिर 28 ज़ुल्हिज्जा और फिर 29 ज़ुल्हिज्जा। वो महीना 29 का था। ये 3 दिन और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख बीमारी से शिफा यानी बीमारी से शहादत, तीसरे दिन पूरा होने पर और चौथे दिन के आगाज पर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। जिस वक्त सैयदना फारूक आजम पर हमला हुआ, ये सहाबा में एक वाहिद इंसान है सैयदना फारूक आजम कि जिन्हें खुदावंद कुद्दूस ने जमीन पर हुकूमत अता फरमाई तो फिजाओं पर भी हुकूमत फारूक आजम पर थी, जानवरों पर भी हुकूमत फारूक आजम की थी, जिन्नातों पर भी हुकूमत फारूक आजम की थी। ये वो इंसान सहाबा में एक ऐसा गुजरा है कि जिन्हें तौरात और इंजील के हामिलीन ने मुल्क शाम के सफर में अपनी किताबें खोलकर
फारूक आजम का नक्शा मिला करके सैयदना फारूक आजम की जो है पेशीन गोइयों को अपनी आंखों से देख करके इस्लाम कबूल किया था। बहुत बालिग नजर जिनके मंशा पर कुरान के 12-10 से जायद मकामात पर खुदावंद कुद्दूस ने फैसला फरमाया हो। अजीम तरीन इंसान जिनकी शहादत का तफसीली वाकया में जिक्र कर चुका हूं। आज पहली तारीख को सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और पहलू सिद्दीक में दफन होने की अबदी शहादत आस्ताना नबूवत में सैयदना फारूक आजम को नसीब हुई रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ाहु। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की तरफ से साहबाए किराम को, खुसूसन अशराए मुबश्शरा को, सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल नसीब फरमाए। जिस वक्त और खुसूसन हमारे महल्ले में इब्राहिम भाई गोवा मरहूम और अहमद साहेब वराम मरहूम और इस तरह के जितने भी हजरात मर्द और औरतें ख़वातीन में से अल्लाह की रहमत में चले गए हैं, अल्लाह ताला सबकी करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीक़ु बिजलालि अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए नाम तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपके मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी कुदरत बहुत बड़ी है। इंसान जन्म कहाँ लेता है, खिदमत कहाँ करता है, ऐ अल्लाह फिर आखिरी वक्त में बीमारी तेरी तरफ से आती है। आप बीमारी के भी खालिक हैं, दवा इलाज के भी खालिक हैं। आपने बीमारी भी पैदा की, दवा भी पैदा की। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवाई न हो, लेकिन मालिक ये कैसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है और इस नाते से जुल्म किया जाता है। मशकूक मुश्तबे मरने वालों का पीएम किया जाता है। अल्लाह ये कैसी हुक्मरानी है कि इसका पीएम नहीं होने देते। रब्बुल इज्जत हमें वबा कैसे समझ में आए। अल्लाह आप ही जुल जलाल वल इकराम है। मालिकुल मुल्क ये दो रूखापन समझ में नहीं आता है। रब्बुल इज्जत हम तो जालिमों के सिकंजे में हैं, हम तो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। रब्बुल इज्जत कुसूर हमारा ही है, हमारे ही हाथों की कमाइयों को हम ए अल्लाह भुगत रहे हैं। लेकिन रब्बुना रहमान अल मुस्तान तुझ ही से मदद मांगी जाती है। भूल तो हमने की है, गुनाह हमने किए हैं, जानबूझकर हमने ये सब कुछ किया है। ये खेती हमने ही बोई है मेरे परवरदिगार, इसीलिए वही काटा जाता है जो बोया जाता है। जुल्म की तेज धार को हमने तेज किया था। अल्लाह हालात तेरी तरफ से है, हम मखलूक को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तू ही खालिक और मालिक है। रब्बुल इज्जत अब आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करते हैं, इंसान की जिंदगी कैसी गुजरती है। एक सख्ती का बोल भी वो नहीं बोलता है और कहा जाकर के तू किस सरजमीन में ले लेता है मेरा रब। ये जितने जमीन पर रेंगने वाले जानवर हैं, हम में से कौन जानता है कि कौन सी जमीन हमारे लिए तय है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब कब्र की भी तैयारी रखते हैं, कफन की भी तैयारी रखते हैं, लेकिन रब्बुल इज्जत में से कौन जानता है कि जिस वक्त मां के पेट पे जान पड़ी थी तूने कौन सी जमीन लिखी होगी। अल्लाह सआदत की जमीन लिखियो, शकावत की जमीन मत लिखियो। नेकों का पड़ोस नसीब फरमाइयो, बदों के पड़ोसों से हिफाजत फरमाइयो। रब्बुल आलमीन ईमान की बहुत दीजियो, उसने खातिमा नसीब फरमाइयो। बुरी अचानक की हादसत की गफलत की जहालत की बहुत से बचाइयो। बोला जमाना लंबा हो गया, अल्लाह आजमाइश बहुत लामी हो गई। रब्बुल इज्जत अकरमुल अकरमीन अल्लाह व अरहमुर राहिमीन अल्लाह व जुल जलाल वल इकराम अल्लाह व जुल कुव्वतिल मतीन अल्लाह। ए वो रब जो इब्राहिम के हाथों इस्माइल के हुल्कुम पर छुरी रखवाए और जन्नत से मेंढा उतार दे। ए वो रब जो यूसुफ को कुआं में डाला जाए और कुएं में डालने के बाद अंदर गिरने से पहले जिब्रील आसमान से उतरकर पत्थर निकाल दे और यूसुफ को पत्थर पर बिठवा दे। ओ अल्लाह तू इतनी बड़ी ताकत का मालिक है। इस माह मुबारक की बरकत से जिसकी आज पहली तारीख है,
अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अस्तानी फारूक आदम की शहादत के वसीले में दास्तान नबूवत में पहले सिद्दीक में आराम कर रहा है, जिनके आज शहादत का दिन है। अल्लाह तू लाज रख ले, उम्मत को ज्यादा देर कष्ट में न रखने से हिफाजत फरमाए मौला। उम्मत दे रही है, उम्मत मुश्किलात में मुब्तला है, उम्मत हालात के शिकार हो चुकी है। किसी बेटी के मासूम बच्चों के लाज रख ले, किसी माँ की ममता के लाज रख ले। अल्लाह हॉस्पिटलों में जुल्मत कैद बल है, रब्बुल इज्जत इन्हें घर आफियत के साथ पहुंचा दे, हंसते मुंह पहुंचा दे। रब्बुल आलमीन एक वो भी खातून थी जिसके दावत को कोरोना के नाम से पकड़ लिया और उसका टेस्ट लेते ही खाली सुई लगने पर अल्लाह उसने तुझसे दुआ की, इस मुसीबत से पहले अल्लाह तो अपनी रहमत का आगोश नसीब कर दे। वो भी तेरी जवारे रहमत में चली गई। अल्लाह नेकों की नेक मौत के सदके में, हाज़िरीन के आमीन के सदके में, ये जो वजीफा पढ़ा गया उसके सदके में तमाम शोहदा इस्लाम की दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमा। जिनके नाम लिए गए नहीं लिए गए आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन की करवट करवट मगफिरत फरमा, कब्रों को नूर से भर दे, रूहों को लिगिन में दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में हर एक को तौफीक दे कि इन जाने वालों के लिए कुछ करे। ऐ अल्लाह उम्मत में ऐसी बुर्दनी पैदा हो चुकी है कि घरों पर 3-3 दिन 10-10 दिन बैठा रहता है, लेकिन उसके इसाले सवाब के लिए शक्लें इसके पास से चली गई। अल्लाह उम्मत अजीब अजीब रास्ते से बेदीनी की तरफ जा रही है, उम्मत अजीब अजीब ढोंग से बददीनी की तरफ जा रही है। रब्बुल आलमीन मदद फरमा दे, इस वबा से नजात अता फरमा दे, जालिमों के सिकंजे से, जुल्म की चक्की से जिसमें उम्मत पिस रही है, इस मुहर्रम की बरकत से नजात अता फरमा दे, इस मुल्क को और वल्द को आजाद फरमा दे। रब्बुल आलमीन बरकतें नाजिल फरमा दे, वबाओं को दूर फरमा दे, अमन और अमान नसीब फरमा दे, मांगी हुई दुआएं कबूल फरमा ले। जो हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं अल्लाह भरपूर सेहत आफियत तंदुरुस्ती सलामती नसीब फरमा। जो घरों में इलाज ले रहे हैं खूब खूब सेहत आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। अल्लाह सालेह नौजवानों को तौफीक अता फरमा, दुख दर्द में शामिल होने की हमें तौफीक अता फरमा। हम अपनी जात को चुरा करके बचा कर रखने वाले न बने, हम किसी के दुख में काम आ जाए, हम किसी के दर्द में काम आ जाए, हम किसी के मुश्किल वक्त में काम आ जाए। अल्लाह हमारे जवानों को तौफीक अता फरमा। महल्लों में फिर से अल्लाह अजीब किस्म की ईमानी शुआएं और लहरें दौड़ा दे, हम में से हर एक को तौफीक अता फरमा दे। दूसरे के मर्ज को दूसरे की हद तक महदूद न रहे, दूसरे की बीमारी को अपनी बीमारी समझकर अल्लाह हमें उनकी तीमारदारी में शिरकत की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर